ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ کراچی کی سڑکوں پر اس رات بارش برس رہی تھی۔ بادلوں کے شور کے بیچ ایک لڑکی ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ کپڑے بھیگ چکے تھے، بال چہرے سے چپکے ہوئے اور سانس بے ترتیب۔ وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی جیسے اندھیرے میں کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ رک جاؤ سمارا، ہم نے کہا رک جاؤ، کسی بھاری آواز نے چیخ کر کہا۔ اس نے رفتار تیز کر دی۔ دل سینے میں ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ وہ ہانپتے ہوئے بڑبڑائی۔ ایک موڑ کاٹ کر وہ اندھی گلی میں گھسی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ پیچھے سے موٹر سائیکلوں کے شور اور مردوں کی گالیوں کی آوازیں قریب آتی گئیں۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ دھکیلا۔ لکڑی کا پرانا دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ بس تھوڑا سا سانس لے لوں، پھر نکل جاؤں گی، وہ خود سے بولی اور اندر قدم رکھ دیا۔ گھر نیم تاریک تھا، صرف ایک بلب ٹمٹما رہا تھا۔ دور کہیں سے سگریٹ کے دھوئیں کی بو آ رہی تھی۔ پاؤں کے نیچے شیشے کے ذرے کچھ کچھ آئے اور دل جیسے رک سا گیا۔ یہ جگہ؟ اس نے دھیرے سے ارد گرد دیکھا۔ دیوار پر بندوقیں لٹک رہی تھی اور ٹیبل پر نوٹوں کے بنڈل۔ یا خدا، میں کہاں آ گئی؟ اور اچانک 2 گولیاں چلنے کی آواز گونجی۔ ٹھا ٹھا۔ وہ چونک کر پیچھے ہٹی، دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ دل حلق میں آ گیا۔ اس نے کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے باہر جھانکا۔ صحن میں 4 آدمی کھڑے تھے، ان کے بیچ ایک آدمی زمین پر گرا ہوا تھا اور سامنے بارش میں بھیگتا ہوا ایک شخص گن تھامے کھڑا تھا۔ لمبا، مضبوط، کالے لباس میں، چہرہ نیم اندھیرے میں چھپا ہوا لیکن نگاہوں میں خوفناک سکون۔ باڈی کو ٹھکانے لگاؤ، کوئی نشان نہیں رہنا چاہیے۔ یہ آواز تھی ظفر سپاری کی، کراچی کے انڈر ورلڈ کا وہ نام جسے پولیس بھی کانپ جاتی تھی۔ سمارا کے قدم جیسے جم گئے۔ یہ ظفر سپاری؟ میں اس کے اڈے پر آ گئی ہوں۔ اس نے پیچھے ہٹنا چاہا مگر پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا۔ شیشے کا گلاس گرا اور زور سے ٹوٹا۔ کون ہے وہاں؟ ایک گنڈے نے زور سے کہا۔ ظفر نے گردن گھمائی، آنکھیں کھڑکی پر ٹھہری۔ سمارا نے گھبرا کر پردہ چھوڑ دیا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یا اللہ، مجھے بچا لے۔ اچانک دروازہ دھڑ سے کھلا۔ ظفر سپاری خود اندر آیا۔ گولیوں کی بو، سگریٹ کا دھواں اور اس کے وجود کی سختی نے فضا بدل دی۔ کون ہو تم؟ اس کی آواز گہری اور سرد تھی۔ سمارا کانپ اٹھی۔ میں کچھ نہیں جانتی غنڈے بھائی، میں تو غنڈوں سے بھاگ رہی تھی اور دوسرے غنڈوں میں پھنس گئی۔ اس کے آنسو بہہ نکلے۔ ظفر نے اس کا چہرہ دیکھا، بارش میں بھیگا، خوف سے بھرا، مگر آنکھوں میں ایک عجب سچائی تھی۔ کچھ لمحے وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، کیا دیکھا تم نے؟ سمارا نے ہچکی لی۔ میں نے کچھ نہیں دیکھا، میں نہیں جانتی۔ ظفر نے آگے بڑھ کر اس کی ٹھوڑی اٹھائی۔ جھوٹ بول رہی ہو؟ نہیں، میں نے بس آواز سنی، میں نہیں جانتی کون تھا۔ چند لمحے فضا میں صرف خاموشی تھی، پھر ظفر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا۔ سب باہر جاؤ۔ سب غنڈے ایک دوسرے کو دیکھ کر باہر نکل گئے۔ ظفر نے سگریٹ سلگائی، ایک لمبا کش لیا اور اس کی طرف دیکھا۔ نام کیا ہے تمہارا؟ سمارا۔ کہاں سے آئی ہو؟ میں گھر سے بھاگی نہیں تھی، بس وہ لوگ میرے پیچھے تھے، میں نہیں جانتی کیوں۔ ظفر نے سرد ہنسی ہنسی۔ کراچی میں کوئی بھی اتنا معصوم نہیں ہوتا، ہر کسی کا کوئی نہ کوئی قصہ ہوتا ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ سمارا نے نظریں جھکا لی۔ میرا کوئی قصہ نہیں، بس غلط وقت، غلط جگہ۔ ظفر نے سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور بولا، ٹھیک ہے، آج کی رات یہیں رہو، صبح بات کریں گے۔ میں جا سکتی ہوں؟ جا سکتی ہو، لیکن باہر نکلتے ہی تمہیں وہی لوگ ملیں گے جن سے بھاگ کر آئی ہو، اور شاید اس بار کوئی نہیں بچائے گا۔ سمارا نے بے بسی سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، میں رک جاتی ہوں۔
सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आईं तो समारा ने आंखें खोली। वो सोफे पर सोई हुई थी। सामने जफर सुपारी बैठा था, लैपटॉप पर किसी से वीडियो कॉल पर बात करते हुए। काम साफ होना चाहिए, कोई शोर नहीं, समझ गए? उसने कॉल बंद की और समारा की तरफ देखा। जाग गई तुम? जी। चाय पियोगी या सिर्फ खौफ? वो चौंक कर बोली। चाय। जफर ने हाथ के इशारे से किसी को बुलाया। रेहान, 2 चाय ले आओ। रेहान, जफर का दायां हाथ, नरम लहजे वाला मगर सख्त निगाहों वाला लड़का, अंदर आया। उसने समारा को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। ये कल वाली मेहमान है ना? हाँ, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं, जफर ने ठंडे लहजे में कहा। रेहान ने चाय रखी और बाहर चला गया। समारा कप पकड़ते हुए बोली, मैं कल की बात के लिए शर्मिंदा हूं, मुझे नहीं पता था ये जगह। जफर ने बात काटी। शर्मिंदा मत हो, लेकिन ये जान लो कि तुमने एक ऐसी दुनिया में कदम रखा है जहां वापसी आसान नहीं। मैं बस जाना चाहती हूं। अभी नहीं, तुम्हारी आंखों में खौफ है, लेकिन शायद कुछ और भी। कोई राज? नहीं, मेरा कोई राज नहीं। जफर ने आंखें सुकेड़ी। फिर वो कौन थे जो तुम्हारे पीछे थे? मैं नहीं जानती, मैं बस बाजार में थी, 2 आदमी मेरे पीछे लग गए, मैं भागी, बस। जफर ने हल्का सा सर हिलाया। तुम्हारे झूठ में भी सच की बू है। ठीक है, तुम्हें कुछ दिन यहीं रहना होगा। यहीं? जफर सुपारी के अड्डे पर? हाँ, बाहर तुम्हारे दुश्मन हैं, यहां सिर्फ मैं हूं, फर्क समझो। समारा ने नजरें झुका ली। पहली बार उसके दिल में खौफ के साथ एक अनजान सा सुकून उतरने लगा। वो नहीं जानती थी कि यह वही लम्हा है जहां से उसकी तकदीर बदलने वाली है। जफर ने बाहर निकलते हुए कहा, रेहान, इस लड़की का ख्याल रखना। रेहान ने सर हिलाया। जी बॉस। समारा ने धीरे से पूछा, वो हमेशा इतने सख्त क्यों रहते हैं? रेहान हंस पड़ा। जफर सुपारी, वो इस शहर का कानून है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सिर्फ किसी खास मौके पर आती है या किसी खास के लिए। खास के लिए? हाँ, मगर वो खास अभी तक किसी ने देखी नहीं। रेहान चला गया। समारा खिड़की के पास गई जहां रात को खौफ छुपा था। आसमान साफ था, लेकिन दिल अब भी बादलों से भरा। उसने आहिस्ता से खुद से कहा, मैं कुछ नहीं जानती गुंडे भाई, मगर अब लगता है जानना पड़ेगा। सुबह के बाद वो घर अजीब हद तक पुरसकून था। बाहर की दुनिया शोर से भरी, मगर जफर सुपारी के अड्डे के अंदर सिर्फ खामोशी की राजधानी थी। समारा सोफे पर बैठी चाय का खाली कप हाथ में लिए सोचों में गुम थी। कल रात अगर वो दरवाजा बंद होता, उसने खुद से कहा, तो शायद आज मैं जिंदा ना होती। उसके जहन में गोलियों की आवाजें, जफर का सख्त लहजा और वो लम्हा बार बार घूमने लगा जब उसने कहा था, यहां सिर्फ मैं हूं, फर्क समझो। दिल में खौफ के साथ साथ एक अजीब सा एतमाद भी जागने लगा, जैसे वो किसी महफूज कैद में हो। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रेहान हाथ में नाश्ते की ट्रे लिए अंदर आया। तुम्हारे लिए ये खास हुक्म आया है बॉस का। जफर सुपारी ने? हाँ, वो कहता है भूखी लड़की खौफ से ज्यादा खतरनाक होती है। रेहान की बात पर समारा के लबों पर पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट आई। वो इतने बुरे नहीं जितना शहर कहता है। रेहान ने ट्रे मेज पर रखी। वो बुरे भी हैं और अच्छे भी। सब इस पर मुनहसिर है कि सामने वाला उनके लिए क्या मायने रखता है। और तुम्हारे लिए? रेहान ने एक लम्हे को तवक्कुफ किया। मेरे लिए वो खुदा की तरह हैं, लेकिन कभी कभी सोचता हूं शायद वो भी इंसान है जिन्हें कभी बस किसी ने समझा नहीं। फिजा में चंद लम्हे खामोशी रही। फिर समारा ने आहिस्ता से पूछा, वो अभी कहाँ हैं? मीटिंग में हैं, तुम्हारे बारे में फैसला कर रहे हैं। मेरे बारे में? क्या फैसला? रेहान ने नजरें चुराई। मैं कुछ नहीं जानता, वो खुद बताएंगे। रेहान चला गया। समारा के दिल की धड़कन तेज होने लगी। फैसला? क्या वो उसे जाने देगा या? उसी वक्त दरवाजा खुला। जफर सुपारी अंदर आया।
स्याह शर्ट, हाथ में फाइल, चेहरे पर वही संगीनी। तुम्हें नीचे आना होगा, कुछ बात करनी है। अभी? हाँ अभी। समारा खामोशी से उसके पीछे चल दी। नीचे हॉल में 3 आदमी बैठे थे, जफर के आदमी। टेबल पर तस्वीर रखी थी। जफर ने उनमें से एक तस्वीर इसके सामने फेंकी। पहचानो, ये लोग वही हैं जो तुम्हारे पीछे थे। समारा ने तस्वीर देखी। 2 चेहरे जिन्हें वो कभी भूल नहीं सकती थी। हाँ यही थे, यही दोनों मेरे पीछे लगे थे। जफर ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। तो तुम वाकई झूठ नहीं बोल रही थी। मैंने कहा था मैं कुछ नहीं जानती। हाँ मगर अब जान लो, ये दोनों आदमी मेरे दुश्मन के थे, हसन बलोच के। कौन हसन बलोच? एक पुराना हरीफ, पुलिस की जबान में मुजरिम, शहर की जबान में बिजनेसमैन। वो अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। शायद तुम भी। मैं? नहीं, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने तुम पर इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ हकीकत बताई है। जफर ने कुर्सी से टेक लगाई। अगर वो तुम्हारे पीछे थे तो या तो तुमने कुछ देखा या तुम्हारे पास कुछ है जो वो चाहते हैं। समारा ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस एक पर्स था जो मैं भागते हुए कहीं गिरा बैठी हूं। जफर के माथे पर शिकने उभरी। पर्स? कहां गिरा? मुझे याद नहीं, बस एक गली में जहां मैं छुपी थी। रेहान? जफर ने जोर से आवाज दी। रेहान फौरन अंदर आया। बॉस, कल रात की गली चेक करो, कुछ भी मिले मेरे पास लाओ। जी। रेहान चला गया। जफर ने दोबारा समारा की तरफ देखा। जब तक हमें कुछ पता नहीं चलता तुम यहां रहोगी। तुम्हारी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, और अगर वो लोग दोबारा आ गए तो वो दोबारा नहीं जाएंगे। उसकी आवाज में वही सर्द यकीन था जिसने समारा के दिल में खौफ और एतमाद दोनों पैदा किए। बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी थी। जफर बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। रेहान वापस आया, हाथ में एक पर्स। यही मिला है बॉस। जफर ने पर्स खोला। अंदर एक छोटी सी पेन ड्राइव थी। रेहान ने चौंक कर कहा, बस यही चीज हो सकती है जिसके लिए वो इसके पीछे थे। जफर ने पेन ड्राइव मेज पर रखी। पता करो इसमें क्या है, लेकिन मोहतात रहना। बलोच की फाइलों में हमेशा जहर छुपा होता है। रेहान सर हिलाकर बाहर चला गया। जफर ने पर्दे के पीछे देखा। समारा नीचे सोफे पर सो रही थी। रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वो लम्हा भर के लिए खामोश रहा। क्या मुसीबत बनकर आई हो तुम? वो खुद से बोला, लेकिन अगले ही लम्हे हल्की सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आ गई, और शायद यही मुसीबत कुछ बदल दे। समारा ने आंख खोली तो सामने जफर बैठा था, कॉफी के कप के साथ। तुम जल्दी जागती हो या खौफ ने जगाया? खौफ अब कम लगता है। अच्छा? हाँ, क्योंकि आपके होते हुए कोई करीब नहीं आ सकता। जफर हल्का सा मुस्कुराया। एतमाद इतनी जल्दी? शायद दिल को यकीन आ गया है कि आप बुरे नहीं हैं। जफर खामोश हो गया। कुछ लम्हे वो बस उसकी आंखों को देखता रहा, फिर अचानक बोला, कल रात तुम्हारा पर्स मिला, उसमें एक पेन ड्राइव थी। समारा चौंक गई। पेन ड्राइव? मेरे पास तो कभी नहीं थी। फिर ये कैसे आई? मुझे नहीं मालूम। मैंने वो पर्स कल एक औरत से लिया था। वो गिरकर बेहोश हो गई थी। मैंने बस उसकी मदद के लिए। जफर की नजरें सख्त हो गई। औरत? कहाँ? बाजार में। वो जख्मी थी। उसने खुद मुझे वो पर्स थमाया और कहा, किसी महफूज जगह ले जाओ। मैं भाग गई। जफर की आंखों में चमक उभरी। ये बात पहले क्यों नहीं बताई? मैं डरी हुई थी, आप पर यकीन नहीं था। अब है? समारा ने धीरे से कहा। अब शायद है। जफर ने मेज से पेन ड्राइव उठाई। शायद तुम्हारे पास वो चीज है जिसके लिए आधा शहर तुम्हें मारना चाहता है। और आप क्या चाहते हैं? जफर ने एक लम्हे के लिए उसे देखा, फिर धीरे से बोला, सच, तुम्हारा, बलोच का और मेरा। उस रात रेहान लैपटॉप पर फाइल खोलने की कोशिश कर रहा था। बॉस, फाइल इनक्रप्टेड है,
कोई आम चीज नहीं लगती। जफर ने कहा, कोशिश करो जल्दी, बलोच के आदमी तुम्हें ढूंढने निकल चुके हैं। रेहान तेजी से कोड तोड़ने लगा। अचानक स्क्रीन पर एक पैगाम उतरा, वार्निंग, सिस्टम ट्रेस्ड। बॉस, किसी ने हमारा लोकेशन ट्रेस कर लिया है, कंप्यूटर बंद करो। जफर चीखा। उसी लम्हे बाहर से 2 गोलियां चली, खिड़कियां टूट गईं और शीशा बिखर गया। समारा चीख उठी। जफर ने उसे पकड़कर नीचे गिराया। नीचे रहो। रेहान बंदूक उठाकर बाहर भागा। गोलियों की आवाजें गूंजती रहीं, फिर खामोशी। जफर ने एहतियात से सर उठाया। रेहान वापस आया तो सांस फूली हुई थी। बॉस, वो लोग यहां तक पहुंच गए हैं। कितने थे? 4। 3 भाग गए, 1 मर गया। जफर ने दांत पीसे। बलोच का पैगाम था ये। फिर उसने समारा की तरफ देखा जो जमीन पर सहमी हुई बैठी थी। ये तुम्हारी वजह से हुआ है, लेकिन अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक ये खेल खत्म नहीं होता तुम कहीं नहीं जाओगी। समारा ने खौफजदा लहजे में कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मालूम है, लेकिन अब सब तुम्हारी वजह से हो रहा है और शायद ये सब तुम पर ही खत्म होगा। जफर ने आहिस्ता से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। डरने की जरूरत नहीं। जब जफर सुपारी किसी को अपनी हिफाजत में ले ले तो मौत भी सोच कर आती है। समारा ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा। पहली बार उसके चेहरे पर सुकून की झलक आई, लेकिन बाहर अंधेरी रात में कोई उन दोनों पर बंदूक तान कर बैठा था और खेल अभी शुरू हुआ था। रात के आखिरी पहर का वक्त था। गोलियों की आवाजों के बाद पूरा घर सुनसान हो चुका था। बाहर की गली में बारिश का पानी बह रहा था और हवा के साथ खामोश सरगोशियां गूंज रही थीं। जफर सुपारी खिड़की के पास खड़ा था, हाथ में पिस्तौल और निगाहें अंधेरे में गुम। रेहान ने अंदर आकर कहा, बॉस, गली साफ है, लेकिन वो 3 आदमी दोबारा लौट सकते हैं। जफर ने गर्दन मोड़ी। उन्हें आने दो, इस बार वो वापस नहीं जाएंगे। रेहान ने हल्का सा सर हिलाया। मैं पहरा बढ़ा देता हूं। नहीं, तुम खुद बाहर रहो, बाकियों को बदल बदल कर भेजो। जी बॉस। रेहान चला गया। जफर की निगाह सोफे पर सोई समारा पर पड़ी। वो खौफ और थकन के दरमियान नींद में थी। बारिश की हल्की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी और कमरे में सिगरेट की बू फैल रही थी। जफर ने खुद से कहा, ये लड़की किस्मत बनकर आई है या सजा बनकर। उसी लम्हे फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, हसन बलोच। जफर के लबों पर हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट आई। उसने कॉल रिसीव की। जफर सुपारी, तुमने मेरा सामान उठा लिया है। कौन सा सामान? तुम जानते हो पेन ड्राइव, वो मेरी है और मैं वो लेने आ रहा हूं। दिलचस्प बात है ये बलोच कि तुम्हारा सामान एक लड़की के पर्स में था और अब वो मेरी हिफाजत में है। जफर, तुम नहीं जानते तुम किस चीज के साथ खेल रहे हो। मैं वही खेल खेलता हूं जिसके उसूल खुद लिखता हूं। फोन बंद हो गया। जफर ने आहिस्ता से पिस्तौल मेज पर रखा और खामोशी से खिड़की बंद कर दी। फिर उसकी निगाह दोबारा समारा पर पड़ी। अब तुम्हारा ये राज तुम्हें भी महंगा पड़ेगा और मुझे भी। समारा की आंख तब खुली जब दरवाजे के बाहर शोर हुआ। रेहान किसी से उलझ रहा था। मैंने कहा अंदर नहीं जा सकते। हम पुलिस से हैं, तहकीकात के लिए आए हैं। जफर बाहर आया। 2 आदमी वर्दी में खड़े थे। उनके साथ एक तीसरा शख्स कोट में मलबूस, खामोश मगर निगाहों से सब तोल रहा था। इंस्पेक्टर हाशिर खान। जफर ने सद लहजे में कहा, काफी दिन हो गए, तुमसे मुलाकात नहीं हुई सुपारी। मैं मसरूफ था तुम्हारे जालों से बचने में। हाशिर ने मुस्कुराकर कहा, और मैं मसरूफ था तुम्हारी जमीन के नीचे लगी बारूदी सुरंगें गिनने में। रेहान ने बीच में आकर कहा, बॉस, ये लोग अंदर आने पर इसरार कर रहे हैं। जफर ने कंधे उचकाए। आने दो, हमारे घर में छुपाने को कुछ नहीं। समारा ने कमरे के अंदर से यह सब सुना और दिल की धड़कन तेज हो गई। अगर पुलिस ने मुझे देख लिया तो। वो घबराकर खिड़की के पास गई, मगर जफर की आवाज आ गई, यहीं रहो, कोई हरकत नहीं। इंस्पेक्टर हाशिर कमरे में आया।
इर्द गिर्द देखा, फिर तंजिया अंदाज में बोला, अच्छी जगह है, गुंडे का अड्डा, मगर लगता है अब ये किसी पनाहगाह में बदल रहा है। जफर ने सिगरेट सुलगाया। कभी कभी पनाह भी मौत से ज्यादा खतरनाक होती है इंस्पेक्टर साहब। रात को गोलियां चलने की इत्तला मिली। कराची है, यहां खामोशी जुर्म बन जाती है। हाशिर की नजरें मेज पर पड़ी पेन ड्राइव पर ठहर गईं। ये क्या है? मेरा जाती डाटा, हमें चेक करना होगा। जफर ने मुस्कुराकर कहा, मेरे डाटे पर पुलिस के हाथ नहीं लगते। कमरे में तनाव बढ़ गया। रेहान ने आहिस्ता से बंदूक पर हाथ रखा। इंस्पेक्टर हाशिर चंद लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, मैं अभी नहीं, लेकिन जल्द वापस आऊंगा। तब तक उम्मीद है तुम्हारी किस्मत तुम्हारे साथ होगी सपारी। वो चला गया। जफर ने लंबा सांस लिया। रेहान, निगरानी बढ़ाओ, अब पुलिस भी खेल में शामिल हो गई है। और वो पेन ड्राइव, उसमें कुछ ऐसा है जो बलोच को पागल कर रहा है। जल्द पता लग जाएगा। समारा खामोशी से सहन में बैठी थी। रेत की तरह वक्त उसके हाथ से फिसल रहा था। रेहान ने आकर पूछा, कैसी हो आप? पता नहीं, सब ख्वाब लगता है, कभी लगता है डरावना, कभी अजीब सा सुकून देता है। रेहान मुस्कुराया। जफर, सुपारी की दुनिया में यही होता है। यहां मोहब्बत भी गोली की आवाज में बोलती है। मोहब्बत? हाँ, लेकिन उसके लिए दिल होना चाहिए। जफर के पास दिल है, बस वो मानता नहीं। समारा ने नजरें नीची कर ली। क्या उसने कभी किसी से मोहब्बत की? शायद एक बार, लेकिन वो मोहब्बत नहीं बची। अब वो सिर्फ ताकत पर यकीन रखता है। फिर मैं यहां क्यों हूं? रेहान ने नरमी से कहा, शायद किस्मत ने तुम्हें वो याद दिलाने भेजा है जो वो भूल चुका है। इससे पहले कि वो कुछ कहती, ऊपर की बालकनी से जफर की आवाज आई, रेहान मेरे पास आओ। रेहान फौरन चला गया। कंप्यूटर स्क्रीन पर फाइल खुल गई थी। रेहान ने हैरत से कहा, बॉस, ये बैंक ट्रांजैक्शंस हैं। बलोच ने शहर के बड़े सियासतदानों को रिश्वत दी है। उनके दस्तखत, उनके अकाउंट्स, सब कुछ यहां मौजूद है। जफर ने खामोशी से फाइल देखी। तो यही वो राज है जिसके लिए वो लड़की मर सकती थी और समारा जिंदा नहीं छोड़नी थी। अब क्या करें? हमें ये फाइल महफूज रखनी होगी। लेकिन बलोच यहीं नहीं रुकेगा, अब वो यहां आएगा। रेहान ने संजीदगी से कहा, अगर वो आ गया तो जंग शुरू होगी। जफर ने सिगरेट का धुआं छोड़ा। ये जंग तो तब शुरू हो गई थी जब उस लड़की ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। घर की फिजा थकी हुई थी। समारा बालकनी में खड़ी चांद देख रही थी। जफर आहिस्ता से उसके करीब आया। नींद नहीं आ रही? जब हर सिमत खौफ हो तो आंखें बंद कैसे हों? तुम्हारे लिए अब खौफ की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि आप हैं। नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे खेल का हिस्सा बन चुकी हो। समारा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। क्या आप हमेशा इतने सख्त रहते हैं? जफर ने हल्की सी हंसी हंसी। नरम रहूं तो दुनिया चबा जाती है, लेकिन आपकी आंखें कहती हैं कि आप कभी नरम थे। जफर खामोश हो गया। शायद कभी था, अब सिर्फ पत्थर हूं। चंद लम्हे वो दोनों खामोश रहे। फिर जफर ने आहिस्ता से कहा, अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं ऐसा क्यों हूं, तो कल तैयार रहना, मैं तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा जहां सब कहानियां दफन हैं। समारा ने चौंक कर पूछा, कहानियां या राज? जफर ने नजरें नीचे की। दोनों। सुबह होते ही गाड़ी अड्डे से निकली। जफर, समारा और रेहान तीनों साथ थे। गाड़ी शहर के मजाफाती इलाके की तरफ जा रही थी। एक पुराना वेयर हाउस जहां जफर का माजी दफन था। ये जगह क्या है? समारा ने पूछा। जफर ने धीरे से कहा, मेरा पहला जुर्म और शायद आखिरी भी। वो अंदर दाखिल हुए। ढोल, जंग आलूद मशीनें और दीवारों पर पुराने खून के निशानात। जफर एक मुकाम पर रुक गया। यहां एक बार मैंने किसी को मारा था जो मेरे दिल के बहुत करीब था। समारा ने खामोशी से पूछा, क्यों? जफर की आंखें नम हो गई। उसने धोखा दिया, मोहब्बत में और ईमान में। उस दिन मैं मर गया, सिर्फ नाम जिंदा रह गया।
समारा के लबों से आह निकली। शायद इसीलिए आप दूसरों को मरने नहीं देते, क्योंकि खुद पहले मर चुके हैं। जफर ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसके चेहरे पर नरमी उतर आई। तुम बहुत कुछ समझ लेती हो समारा। अचानक बाहर से रेहान की आवाज आई। बॉस, बाहर गाड़ियां रुक गई हैं, बलोच के लोग हैं। जफर ने पिस्तौल निकाला। तो वक्त आ गया। समारा ने खौफजदा लहजे में कहा, अब क्या करेंगे? जो सुपारी करता है खत्म करता है। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा। रेहान बंदूक संभाल चुका था। समारा ने आखिरी बार उसे देखा। उसकी आंखों में पहली बार खौफ नहीं बल्कि यकीन था। दरवाजा खुला, गोलियां चली और कराची की फिजा में एक बार फिर जफर सुपारी का नाम गूंज उठा। कराची की उस रात में एक अजीब सी खामोशी थी। बारिश के बाद हवा में नमी, गली में लाइटों का मध्यम साक्स और जफर सुपारी के बंगले के अंदर एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। समारा अभी तक वहीं बैठी थी, छत की तरफ खाली नजरों से देखती हुई। उसके दिल में खौफ अब भी था, मगर उस खौफ में एक नरमी आ चुकी थी। जफर का लहजा, उसका अंदाज, उसका गुस्सा, सब कुछ एक पुरअसरार सा असर रखता था। दरवाजे पर हल्की सी चाप सुनाई दी। जफर सुपारी अंदर आया। हाथ में एक कप था। कॉफी पियोगी? समारा चौंकी। आप मुझे दे रहे हैं? जहर नहीं है इसमें, फिक्र ना करो। वो मुस्कुराकर बोला और सामने बैठ गया। कॉफी की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। समारा ने कप थामा। उसके हाथ अब भी हल्के हल्के कांप रहे थे। जफर कुछ देर उसे देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें डर लगता है मुझसे? पहले बहुत लगता था, अब शायद थोड़ा कम। और वो क्यों? पता नहीं, शायद अब इतने बुरे नहीं जितनी दुनिया कहती है। जफर ने धीरे से सर झुकाकर हंसा। वो हंसी अजीब थी, जैसे बरसों बाद किसी पत्थर ने दरार में से कोई रोशनी देखी हो। दुनिया जो कहती है वो अक्सर सच नहीं होती समारा। फिर आप जफर सुपारी क्यों कहलाते हैं? उसने सादा मगर नडर लहजे में पूछा। जफर ने लम्हा भर को उसकी आंखों में देखा। क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को भूलने नहीं देता और दोस्तों को धोखा नहीं देता। कमरे में कुछ देर खामोशी छाई रही। बारिश की बूंदें अब भी खिड़की से टकरा रही थी। समारा ने धीरे से कहा, मेरी अम्मा कराची के दूसरे सिरे पर हैं। अगर वो जिंदा होंगी तो मेरी राह देख रही होंगी। अगर जिंदा होंगी मतलब? मेरा उनसे राब्ता 2 दिन से टूटा हुआ है। मैं बस घर जाकर देखना चाहती हूं कि वो ठीक हैं। जफर ने लम्हा भर को नजरें हटाई, फिर सख्त लहजे में बोला, अभी मुमकिन नहीं। तुम्हारे पीछे वही लोग लगे हैं जो तुम्हें मारना चाहते हैं। तुम यहां महफूज हो, बाहर नहीं। मगर आपके साथ रहना भी आसान नहीं। तुम्हें रहना तो पड़ेगा जब तक मैं फैसला ना करूं कि तुम्हारे साथ क्या करना है। समारा ने लब काटे, कुछ कहना चाहा मगर रुक गई। जफर के लहजे में हुक्म था, मगर उसकी आंखों में कोई अनकही थकन छुपी थी, जैसे वो खुद भी कैदी हो। रात गुजर गई। अगली सुबह जफर सुपारी के आदमी किसी मिशन पर निकल गए। वो अकेला रह गया और उसने महसूस किया कि वो इस लड़की की खामोशी से अजीब सा सुकून महसूस कर रहा है। वो दफ्तर में बैठा फाइलों के दरमियान उलझा हुआ था, मगर बार बार निगाह दरवाजे की तरफ उठ जाती। दोपहर के वक्त वो खुद उसके कमरे में गया। समारा छत पर कपड़े सुखा रही थी। बाल हवा में उड़ रहे थे। आसमान नीला था और धूप में वो जैसे किसी ख्वाब की तस्वीर लग रही थी। जफर ने पहली बार उस मंजर को देखकर सांस रोक लिया। कभी कराची की हवा को यूं महसूस किया है? उसने पूछा। समारा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हवा भी कभी महसूस की जाती है? हाँ, जब कोई बहुत अरसे बाद जिंदा महसूस करने लगे। और आपको आज ऐसा लगा? जफर के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। शायद हाँ। उस लम्हे जफर के अंदर वही शख्स जागा जो बरसों से सोया हुआ था, जिसने कभी मोहब्बत की थी, मगर जिसकी मोहब्बत को बंदूक की गोली ने खत्म कर दिया था। समारा, तुम्हें पता है, जो लोग मेरी दुनिया में आ जाते हैं वो या तो मर जाते हैं या मेरी कहानी बन जाते हैं। तो क्या मैं भी आपकी कहानी बुन रही हूं? पता नहीं, मगर मुझे लगता है आप खुद अपनी कहानी से भाग रहे हैं जफर साहब।
ये जुमला सीधा उसके दिल पर लगा। जफर ने नजरें झुकाई, फिर आहिस्ता से बोला, हो सकता है तुम सच कह रही हो। उसी वक्त फोन बजा। जफर ने कॉल उठाई। बॉस, वो लोग वापस आ गए। उन्होंने तुम्हारे बंदे पकड़ लिए हैं और कहा है कि वो लड़की हमारे हवाले करो, वरना वो बंगला उड़ा देंगे। जफर की नजरें समारा पर टिक गईं। अब यह सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं रही, तुम भी इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। मैं? मगर मैंने क्या किया? बस इतना कि तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो और अब तुम्हें बचाना मेरा फर्ज बन गया है। वो तेजी से गन रैक से बंदूक निकालता, कोट पहनता और बाहर निकलने लगा। समारा आगे बढ़कर बोली, आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं भी साथ चलूंगी। पागल हो गई हो? वहां मौत है। मुझे परवाह नहीं, मगर अब मैं भागने वाली नहीं हूं। जफर ने एक पल को उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जिनमें खौफ के बजाय हिम्मत थी। फिर वो बोला, ठीक है, अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम दोनों जिंदा रहेंगे। वो दोनों बाहर निकले। कराची की सड़कों पर हवा तेज थी, फिजा में बारूद की बू और कहीं दूर बिजली चमक रही थी। जफर सुपारी के चेहरे पर अब वही वहशियाना एतमाद लौट आया था, मगर साथ ही कहीं अंदर कोई नरम एहसास जन्म ले चुका था, जो शायद उसकी दुनिया बदलने वाला था। कराची की सड़कें उस रात कुछ ज्यादा ही सुनसान थी। दूर से पुलिस की सायरन की आवाज आ रही थी, मगर जफर सुपारी के जीप के इंजन की गरज सब कुछ दबा देती थी। समारा ने साइड शीशे से बाहर देखा। अंधेरी गलियां, टिमटिमाते बल्ब और हवा में बारूद की बू। जफर, वो लोग वाकई खतरनाक हैं। तुम्हें अब भी शक है? मैंने कभी गोली चलती नहीं देखी। तो आज देख लोगी, लेकिन घबराना नहीं। और अगर मैं घबरा गई तो मेरे पीछे छुप जाना, जैसे तुमने पहली रात खिड़की के पीछे छुपे थे। समारा ने एक लम्हे को उसकी तरफ देखा। जफर का चेहरा सख्त मगर पुरसकून था। आप हंसते हैं कभी? बहुत साल पहले, जब दुनिया थोड़ी अच्छी लगती थी। और अब सिर्फ गोलियां हंसती हैं, लोग नहीं। गाड़ी एक खस्ता हाल इमारत के सामने रुकी। जफर ने गन लोड की और दरवाजे के करीब आकर रुक गया। ये वही जगह है जहां वो छुपे हैं, तुम गाड़ी में ही रहना। नहीं, मैं साथ चलूंगी। समारा, आपने कहा था मैं अब खेल का हिस्सा हूं, तो मैं पीछे क्यों रहूं? जफर ने उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए देखा, फिर आहिस्ता से सर हिलाया। ठीक है, मगर मेरा इशारा मिलने से पहले कुछ नहीं करोगी। दोनों अंदर दाखिल हुए। इमारत में अंधेरा और सन्नाटा था, सिर्फ छत से पानी टपकने की आवाज आ रही थी। जफर के कदमों के साथ साथ समारा के नरम कदम भी चल रहे थे। अचानक पीछे से आवाज आई, सुपारी आ गया। और फिर फायरिंग शुरू हो गई। गोलियां दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। जफर ने मेज उल्टाकर समारा को नीचे धकेला। नीचे रहो, मैं ठीक हूं, वो चीखी। जफर ने एक गोली चलाई। दुश्मन जमीन पर गिर पड़ा। 2 कम हो गए, बाकी 4 हैं, वो बड़बड़ाया। समारा के हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुदकार अंदाज में पास पड़ी खाली गोलियों के खौल समेटे और जफर के पास पहुंचा दिए। जफर ने हैरत से देखा, खौफ खत्म हो गया है तुम्हारा? जब दिल ही पत्थर बन जाए तो खौफ कहाँ रहता है जफर? उसके लहजे में एक अजीब सा एतमाद था। फिर एक लम्हे को गोली की आवाज दोबारा आई। जफर ने तेजी से उसका बाजू पकड़ा और दीवार के साथ लिपटा। तुम्हें चोट लगी? नहीं, मगर आपको खून आ रहा है। जफर के बाजू पर हल्की सी गोली छूकर घुस रही थी। कुछ नहीं, ये मामूली सी खराश है। नहीं, ये खून बह रहा है। समारा ने अपने दुपट्टे की पट्टी फाड़कर उसके बाजू पर बांध दी। उस लम्हे के लिए दोनों खामोश हो गए। उनकी सांसें एक दूसरे से उलझने लगी। जफर की आंखों में पहली बार किसी ने खौफ नहीं बल्कि फिक्र देखी थी, वो भी एक लड़की के लिए। तुम पागल हो, अपने आप को खतरे में डाल रही हो। शायद पागल ही हूं, मगर आपके लिए डर नहीं लगता। जफर कुछ कहने ही वाला था कि पीछे से एक गोली चलने की आवाज आई। समारा ने जफर को जोर से धक्का दिया। गोली सीधी उसके कंधे से छूकर दीवार में जा लगी। जफर ने पलटकर अंधाधुंध फायर खोला। दुश्मन जमीन पर गिरा
और इमारत में फिर खामोशी छा गई। वो पलटकर समारा के करीब आया। तुमने मेरी जान बचाई। मैंने बस वो किया जो दिल ने कहा। जफर ने लम्हा भर को उसके चेहरे को देखा, फिर उसके माथे पर हल्की सी चोट देखकर बोला, अब तुम मेरी हिफाजत में हो, चाहे तुम चाहो या नहीं। दोनों बाहर निकले। बारिश दोबारा शुरू हो चुकी थी। सड़क पर खून और पानी एक साथ बह रहे थे और हवा में बारूद की बू के साथ मोहब्बत की एक हल्की सी खुशबू भी घुल गई थी। गाड़ी में बैठते हुए समारा ने आहिस्ता से कहा, जफर, अगर आप वाकई इतने जालिम हैं जितना लोग कहते हैं, तो फिर ये दिल क्यों धड़क रहा है जब आप खामोश हो जाते हैं? जफर ने सड़क पर नजरें जमाकर जवाब दिया, शायद तुम मेरे अंदर वो चीज जगा रही हो जो मैंने सालों पहले दफना दी थी, इंसानियत। समारा के लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई। फिर शायद आपका जुर्म यही है कि आप दिल रखते हैं। गाड़ी अंधेरी सड़कों पर गायब हो गई, मगर उस रात के बाद जफर सुपारी और समारा की जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहने वाली थी। रात के 3 बजे का वक्त था। बारिश थम चुकी थी, मगर फिजा में अभी भी बारूद की बू तैर रही थी। जफर सुपारी के बंगले के हॉल में खामोशी थी। समारा एक सोफे पर बैठी थी और जफर अपने जख्म पर पट्टी बांध रहा था। आपको अस्पताल जाना चाहिए था। मैं वहां कभी नहीं जाता समारा, मेरे जख्म हमेशा घर पर ही ठीक होते हैं। क्यों? इंसान है ना, कोई पत्थर तो नहीं। मैं पत्थर ही बन गया हूं, तुम नहीं समझोगी। समारा ने एक लम्हा उसे देखा। वो बात कम करता था, मगर हर लफ्ज जैसे सीने में उतर जाता था। मुझे बताएं, आखिर आप ऐसे क्यों हैं? जफर ने खामोशी इख्तियार की। कुछ देर बाद बोला, कभी कभी इंसान जुर्म से नहीं, हालात से गुंडा बनता है। समारा चौंकी। क्या मतलब? आज से 10 साल पहले मैं सिर्फ जफर खान था। मेरा एक बाप था, माँ थी, एक बहन थी। अब्बा बंदरगाह पर मजदूरी करते थे, ईमानदार आदमी थे, मगर गलत वक्त में एक गलत गवाही दे बैठे। एक दिन पुलिस ने उन पर चोरी का इल्जाम लगाया। वो जेल में मर गए। माँ गम में बीमार होकर दुनिया छोड़ गई और मेरी बहन, उसे इन्हीं गुंडों ने उठा लिया जिनके खिलाफ अब मैं खड़ा हूं। समारा का दिल जैसे बंद हो गया। फिर मैं जफर सुपारी बन गया। बंदूक उठाई, नाम बनाया और वो सब खत्म कर दिया जिन्होंने मेरा सब कुछ छीना था। वो कुर्सी से उठा, खिड़की के पास जा खड़ा हुआ। अब मैं जालिम नहीं, बस सजा हूं समारा, किसी की गुनाह की सजा। समारा आहिस्ता से उठी। और अगर किसी दिन कोई तुम्हें माफ कर दे तो? जफर ने उसकी तरफ देखा। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। कुछ लम्हों के लिए दोनों के दरमियान खामोशी छा गई। फिर समारा ने धीरे से कहा, जफर, ये पहला मौका था जब उसने जफर भाई नहीं कहा था। जफर चौंक कर मुड़ा। क्या कहा तुमने? मैंने कहा जफर। वो मुस्कुरा दी। अब आप सिर्फ दुश्मनों के नहीं, मेरी भी जिंदगी का हिस्सा हैं। जफर के लबों पर तबस्सुम आया, ऐसा तबस्सुम जो बरसों बाद किसी ने उसके चेहरे पर लाया था। ये मत कहना, तुम नहीं जानती मेरी दुनिया की कीमत। मैं जानती हूं, मगर शायद आप भूल गए हैं कि कभी कभार मोहब्बत भी बंदूक से ज्यादा ताकतवर होती है। जफर ने नजरें फेर ली, मगर दिल में कुछ हिलने लगा था। उसने खुद से वादा किया था कि वो कभी किसी को अपने करीब नहीं आने देगा, लेकिन ये लड़की तो उसके दिल की दीवारें एक एक करके गिरा रही थी। उसी लम्हे दरवाजा जोर से खुला। जफर के आदमी अंदर भागते आए। बॉस, मसला हो गया। वही लोग जिन्हें आपने मारा था, उनके सरगना शेर अली ने आपके खिलाफ ऐलान कर दिया है कि कल तक अगर वो लड़की उसके हवाले ना की गई तो पूरे इलाके में खून की नदी बहा देगा। समारा के चेहरे का रंग उड़ गया। मैं नहीं चाहती आप मेरे लिए खतरा मोल लें। खामोश रहो। जफर की आवाज बिजली की तरह गूंजी। तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो, और जफर सुपारी अपनी जिम्मेदारी कभी नहीं छोड़ता। वो तेजी से बंदूक लोड करने लगा। कल शाम तक ये जंग खत्म करनी है। अब या तो जफर सुपारी बचेगा या इस शहर में शेर अली का नाम। समारा उसके सामने आ गई। मैं लड़की हूं, कमजोर नहीं, आपके साथ हूं।
जफर ने गहरी सांस ली। तुम कमजोर नहीं मगर कीमती हो और मैं किसी कीमत पर तुम्हें खोने नहीं दूंगा। वो बाहर निकला। हवा तेज हो रही थी। समारा दरवाजे पर खड़ी रही। उसे यकीन था ये रात उन दोनों की तकदीर बदलने वाली थी। कराची की फिजा उस रात गैर मामूली तौर पर खामोश थी, जैसे शहर खुद भी खौफ के साए में सांस ले रहा हो। जफर सुपारी के अड्डे की छत पर बंदूक बरदार पहरा दे रहे थे। नीचे तहखाने में मेज पर फैला नक्शा और मेज के किनारे बैठा जफर, जिसके चेहरे पर किसी जंगजू की सख्ती और किसी आशिक की बेचैनी एक साथ लिखी थी। शेर अली का अड्डा लियारी के पुराने वेयर हाउस में है। कल शाम वो वहां अपने बंदों के साथ बैठेगा। हमें रात के अंधेरे में घुसना है। 2 रास्ते हैं, एक मेन गेट, दूसरा पीछे का खुफिया दरवाजा। जफर ने प्लान बनाया। उसके साथी हामिद ने कहा, बॉस लड़ाई बहुत सख्त होगी, वो कम से कम 50 बंदे होंगे। जफर ने सिगरेट सुलगाई, धुआं फिजा में छोड़ा। तो क्या हुआ, जफर सपारी हमेशा अकेला ही लड़ता है। उसी लम्हे समारा अंदर आई, चेहरे पर हल्की थकन मगर आंखों में जिद। मैं भी साथ चलूंगी। सब चौंक गए। जफर ने उसे तेज निगाह से देखा। ये खेल तुम्हारे बस का नहीं। खेल आपके लिए हो सकता है, ये जंग खेल हो, लेकिन मेरे लिए ये अपनी जिंदगी का फैसला है। आपके दुश्मनों ने मेरा माजी छीना, अब मैं उन्हें मेरा हाल नहीं छीनने दूंगी। जफर खामोश हुआ, फिर आहिस्ता से बोला, ठीक है, लेकिन तुम मेरे हुक्म के बगैर एक कदम नहीं बढ़ाओगी। समारा ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। अब आप हुक्म देना छोड़ दें जफर, मैं अब सिर्फ आपके बराबर खड़ी होना चाहती हूं। धुआं, बारिश और तारीकी। जफर के लोग खामोशी से पोजीशन ले चुके थे। समारा के चेहरे पर स्कार्फ बंधा था और हाथ में हल्की सी पिस्तौल। जफर ने कान के माइक में कहा, सब तैयार, 3, 2, 1। अचानक फिजा में गोलियों की बौछार गूंजी। शेर अली के आदमी दरवाजे से बाहर निकले। ये जफर सपारी की मौत का दिन है। जफर ने जवाब दिया, नहीं, आज कराची की गलियां जफर के इंसाफ की गवाह बनेगी। गोलियों की बारिश में वो आगे बढ़ा। समारा दीवार के साए में झुकी फायरिंग के दौरान एक बंदे को गिरा दिया। जफर की आंखें हैरान हुईं। समारा, तुमने गोली चलाई? हाँ, क्योंकि अब मुझे डर नहीं लगता। वो लम्हा जैसे सुस्त हो गया। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। पस मंजर में गोलियों की आवाज मध्यम पड़ गई। फिर अचानक एक धमाका हुआ। शेर अली ऊपर वाले कमरे की खिड़की से चीखा, जफर, तुम्हारी कहानी आज खत्म। जफर ने समारा को एक तरफ धकेला, खुद आगे बढ़कर गोली चला दी। शेर अली की बंदूक हाथ से गिर गई, लेकिन उसी लम्हे एक और गोली चली और वो सीधी जफर के बाजू में लगी। जफर! समारा चीख कर उसकी तरफ भागी। खून बह रहा था, मगर जफर ने हंसकर कहा, यह मोहब्बत की गोली थी, दर्द नहीं दे सकती। खामोश रहें, मैं कुछ करती हूं। समारा ने अपने दुपट्टे से पट्टी बांधी, हाथ कांप रहे थे। तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। जफर ने धीरे से उसका चेहरा थामा। मुझे पहली बार किसी ने चाहा है और मैंने पहली बार किसी के लिए मरने का दिल चाहा है। उसके लफ्ज हवा में घुल गए। शेर अली के बाकी आदमी पुलिस के सायरन सुनकर भागने लगे। जफर ने बामुश्किल खुद को संभाला। चलो, जल्दी निकलना होगा, पुलिस हमें यहां देख लेगी तो दोनों खत्म। समारा ने उसका बाजू कंधे पर रखा। आज तुम मेरे साथ चलोगे जफर, अब मैं तुम्हारी दुनिया में रहना सीख चुकी हूं। वो दोनों बारिश में भीगते हुए अंधेरे में गायब हो गए। सुबह का सूरज कराची की इमारतों पर चमक रहा था। जफर एक पुराने अपार्टमेंट में आंख खोलता है। समारा खिड़की के पास खड़ी है और हाथ में चाय का कप। कितनी अजीब बात है ना, वो बोली। आपके जख्मों से खून बह रहा था और मेरे दिल से मोहब्बत। जफर ने आहिस्ता से कहा, शायद अब मेरा जुर्म तुम बन चुकी हो समारा। वो पलटकर मुस्कुराई। तो फिर ये जुर्म मैं भी दोहराना चाहती हूं, बार बार। कराची की वो सुबह कुछ और थी। सड़कें भीगी हुई, फिजा में नमी और दूर अजान की बाजगश्त। जफर सुपारी सोफे पर नीम दराज था। बाजू पर जख्म की पट्टी अभी भी ताज़ा थी।
समारा ने खामोशी से चाय का कप उसके सामने रखा। पियोगे? जफर ने धुंधली आंखों से उसकी तरफ देखा। तुम्हें चाय बनानी आती है? समारा ने हल्का सा तंज किया। डॉन के घर में रहकर इतना तो सीख ही लिया है कि उसे तल्ख चीजें पसंद है। जफर ने मुस्कुराकर कप पकड़ा। तुम बदल रही हो समारा। नहीं, बदल तो आप रहे हैं। अब आपके चेहरे पर वो जफर सुपारी वाला जहर नहीं रहा। कभी कभी किसी की मौजूदगी बंदूक से ज्यादा ताकतवर बन जाती है। वो खामोश हो गई। उन दोनों के दरमियान अब एक अजीब सा सुकून था, जैसे तूफान के बाद समंदर पल भर को ठहर गया हो। लेकिन जफर का दिल बेचैन था। वो जानता था कि शेर अली की मौत के साथ कहानी खत्म नहीं हुई। उसे एक एहसास खाए जा रहा था कि सब कुछ अभी शुरू हुआ है। दोपहर के करीब दरवाजा बजा। जफर ने फौरन बंदूक संभाली। कौन है? मैं हूं बॉस, हामिद। दरवाजा खुला तो हामिद पसीने में शराबूर अंदर आया। बॉस, हमें मसला हो गया है। क्या हुआ? शेर अली के बंदों में से एक पकड़ा गया। उसने कुछ ऐसा कहा है जो हमें हिलाकर रख देगा। बकवास मत कर, सीधा बोल। हामिद ने कागज का एक पुर्जा निकाला। उसके मुताबिक शेर अली को पैसे और हथियार जिसने दिए वो कोई बाहर वाला नहीं, आपका ही आदमी है। जफर के चेहरे पर खून उतर आया। कौन? राशिद खान, आपका सौतेला भाई। कमरे में लम्हा भर को खामोशी फैल गई। समारा की आंखें हैरत से फैल गई। भाई? जफर ने सद लहजे में कहा। हाँ, मेरा बाप दोबारा शादी करके मर गया था। राशिद मेरी माँ का नहीं मगर मेरे खून का था। मैंने उसे हमेशा अपने साथ रखा, मगर शायद उसने हमेशा मेरा तख्त चाहा। समारा आगे बढ़ी। तो वही है जो आपको खत्म करना चाहता था? हाँ, और अब मैं उसे ढूंढूंगा, चाहे कराची की जमीन खोदनी पड़े। जफर ने मेज पर से बंदूक उठाई। तुम कहीं नहीं जाओगे, समारा ने सख्त लहजे में कहा। तुम अभी ठीक नहीं हुए। मैं ठीक ना भी हूं तो चल सकता हूं। जिसने मेरा खून बेचा उसे अब मैं माफ नहीं करूंगा। शाम के वक्त दोनों बंद रोड की तरफ निकले। रास्ता पुराना मगर खतरनाक था। हर तरफ पुलिस की चौकियां, हर मोड़ पर नजरें। समारा ने स्कार्फ लपेटा हुआ था। अगर तुम पकड़े गए तो? मैं जफर सुपारी हूं समारा। कानून के हाथ मुझ तक पहुंचने से पहले कांपते हैं। एक वीरान गोदाम के पास गाड़ी रुकी। अंदर धुआं उड़ रहा था, दीवारों पर बोसीदा निशान, और दरमियान में कुर्सी पर बंधा हुआ शख्स, राशिद खान। जफर के कदमों की आवाज गूंजी। कितना नीचा गिरा तू राशिद? राशिद ने हंसी छोड़ी। मैं गिरा नहीं, मैं बस ऊंचा चढ़ना चाहता था। तुझे नहीं लगता जफर ये शहर अब तुझसे तंग आ गया है? जफर के चेहरे पर गुस्सा आया। तूने शेर अली को मेरे खिलाफ पैसा दिया? हाँ, क्योंकि तू डॉन बन गया और मैं तेरा साया रह गया। तू मां के नाम पर रोया और मैं सिर्फ तेरा साया बनकर मर गया। जफर ने बंदूक उठाई। समारा ने उसका हाथ थाम लिया। जफर नहीं, ये मेरा खून है मगर जहर बन चुका है समारा। राशिद ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। मोहब्बत ने तुझे कमजोर कर दिया जफर। पहले तुझे गोलियां नहीं लगती थी, अब एक लड़की के आंसू तेरी जान ले सकते हैं। जफर की उंगली ट्रैगर पर रुक गई, फिर उसने बंदूक नीचे कर दी। नहीं राशिद, मैं अब वो जफर नहीं जो नफरत से जिंदा था। मैं तुझे मारकर अपना सुकून नहीं पा सकता। राशिद हंसा। तू कमजोर हो गया है? नहीं, मैं इंसान बन गया हूं। जफर ने उसके सामने बंदूक फेंक दी। जा, जितना चाहे खेले। अब जफर सुपारी नहीं, सिर्फ जफर खान बाकी है। राशिद हैरत से देखता रह गया। जफर मुड़कर बाहर निकल गया। समारा उसके पीछे थी। बाहर रात उतर चुकी थी। समंदर की हवा चल रही थी। समारा ने कहा, तुमने आज अपने माजी को माफ कर दिया जफर? नहीं समारा, मैंने अपने दिल को सजा दी है। उसने धीरे से उसका हाथ थामा। और यह सजा शायद तुम्हें मेरे करीब ले आएगी। दूर गोदाम के अंदर एक गोली की आवाज गूंजी। राशिद ने खुद पर गोली चला ली थी। जफर ने आंखें बंद कर ली। मेरे खून का कर्ज भी खत्म हो गया। समारा ने आहिस्ता से उसका सर अपने कंधे पर रखा। अब सिर्फ हम रह गए हैं जफर, तुम, मैं और कराची की ये रातें।
ज़फ़र ने आंखें खोली। नहीं समारा, अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई। अब वो लोग आने वाले हैं जो राशिद और शेर अली के पीछे थे। मोहब्बत की आखिरी रात। कराची की रात समंदर की हवा में लिपटी हुई थी। ज़फ़र सुबारी अब बंदूक के शोर से आज़ाद एक छोटे अपार्टमेंट में था। खिड़की से बाहर लाइटें झिलमिला रही थीं और अंदर समारा चाय बना रही थी। आज कुछ मुख्तलिफ लग रहा था। ज़फ़र के लहजे में नरमी थी। समारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आज पहली बार हम दोनों जिंदा हैं, खौफ के बगैर, दुश्मनों के बगैर। ज़फ़र ने गहरी सांस ली। पता है, मुझे लगता है मैंने सारी जिंदगी अंधेरे में गुजारी और तुम वो रोशनी हो जो गलत वक्त पर आ गई, मगर शायद बिल्कुल सही लम्हे पर। समारा उसके करीब आ गई। मैं रोशनी नहीं ज़फ़र, बस तुम्हारा साया हूं जो अब तुम्हारे साथ रहेगा। ज़फ़र ने धीरे से उसका हाथ थामा। कभी सोचा नहीं था एक भागी हुई लड़की डॉन ज़फ़र सुपारी के दिल पर राज करेगी। समारा ने शोखी से कहा, और कभी मैंने नहीं सोचा था कि एक कातिल इतना खामोश मोहब्बत करने वाला हो सकता है। दोनों हंस पड़े। वो हंसी जैसे बरसों बाद किसी जख्मी दिल ने महसूस की हो। बारिश दोबारा शुरू हो गई थी। ज़फ़र ने खिड़की बंद की, रोशनी मध्यम कर दी। क्या तुम खुश हो समारा? हाँ, क्योंकि अब मेरा माजी तुम्हारे साथ दफन हो चुका है। ज़फ़र ने आहिस्ता से कहा, अगर मैं कल ना रहा तो? चुप करें। समारा ने उसके लबों पर उंगली रखी। अब आप मेरे दिल में हैं, यहां से कोई नहीं जाता। वो लम्हा जैसे रुक गया। बारिश के कतरों के साथ उनके दरमियान की दूरी भी बह गई। ज़फ़र ने धीरे से उसके माथे पर बोसा दिया। तुमने मेरी दुनिया बदल दी समारा, और तुमने मेरी जिंदगी को कहानी बना दिया ज़फ़र। उस लम्हे खिड़की के बाहर एक स्याह रंग की गाड़ी रुकी। ज़फ़र का दिल चौंक गया। रुको, कोई आ रहा है। वो तेजी से बंदूक की तरफ लपका। दरवाज़ा जोर से खुला और दो नकाबपोश अंदर घुस आए। गोलियों की आवाज़ें गूंज उठी। ज़फ़र ने एक को गिराया, दूसरा पीछे हटा, मगर उसकी गोली सीधी ज़फ़र के सीने में लगी। समारा ने चीखकर उसे थाम लिया। ज़फ़र। ज़फ़र के लबों पर खून था, मगर चेहरे पर सुकून। डरना नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा बचाया, आज भी बचाऊंगा। नहीं, आप कुछ नहीं बोलेंगे। समारा, मेरी दुनिया तुम हो। उसके अल्फाज धीरे धीरे टूट गए। समारा की चीख रात में गुम हो गई। सुबह जब पुलिस पहुंची तो सिर्फ खामोशी थी। गोलियों के खौल जमीन पर बिखरे थे और सोफे के पास खून से लिखी एक लाइन, मैं कुछ नहीं जानती गुंडे भाई, मगर मोहब्बत सब कुछ सिखा गई।